Continuing the video series of chapter magnetic effects of current. This is class 10th physics chapter, and today we'll be discussing about the magnetic field produced by the circular loop. So this is on it's on the screen. Magnetic field produced, the pattern of magnetic field lines produced by the circular loop. These are actually concentric circles. Discussing more about this magnetic field produced by the wire, I will be discussing it with the help of this small video, with the help of the small animation. We have already studied about the magnetic field produced by the straight wire. Whenever current flows through the straight wire, magnetic field is produced around the wire. Magnetic field produced होता है, that magnetic field is in the form of concentric circles. You can see over here, these are the concentric circles, and in fact these concentric circles form the cylindrical shell around the straight wire. This is a cylindrical shell. This is formed by the magnetic field lines around the circular wire. The direction of these magnetic field lines is given by right-hand thumb rule. Or there is another rule, that's Maxwell's corkscrew rule. This Maxwell's corkscrew rule is also used to find the direction of magnetic field lines, the pattern of magnetic field lines produced around a straight conductor. And also these magnetic field lines, we can also detect them, we can also verify them with the help of compass needle. We have to place different compasses, we have to place compasses around the wire, and the needle, the needle, red color of this needle, it's the north pole of the needle. It gives us the direction of magnetic field lines, this pattern of magnetic field. As you can see, these needles are directed in the circular pattern. यहाँ पे इतनी सारी needles हैं, ये सारी की सारी circular pattern में align hai. So this verifies that the magnetic field lines around a straight wire are in the form of concentric circles. These are the concentric circles around a straight wire. Now we will do one thing, we will modify this cylinder, we will modify this conductor in the form of this circular shell, and we will pass this circle in the form of circle. Okay, and we will pass this circle through the holes of a cardboard. We will take a cardboard and we will pass this circle through this conductor through the holes of this cardboard. Yep. And we will connect this. We are going to connect this coil, this circular coil, this circular conductor to the ammeter and battery, a key, resistor, all are connected in series. ये सब के सब series में हम connect करेंगे. This coil, ammeter is used to measure the current कितना flow करेगा. This is the battery, this is the source of electric current, electric field का source है ये. This is switch and this resistor, means it's variable resistance. We can adjust resistance with it. So यहाँ से हम इस सब सारे, and then we will sprinkle iron filings. जो iron filings होती हैं उनको sprinkle करेंगे over the cardboard के ऊपर छोटे छोटे iron filings को हम sprinkle करेंगे. Okay. Now we will press the key. हम key को press करेंगे and adjust the resistor. As soon as we press the key, this current will start flowing through the wire, through the conductor, the circular conductor के through current start flow करना होगा. Let's say 2 ampere of current is flowing through the wire. ये जो conductor हमारे पास circular coil है, इसके across 2 ampere of current is flowing across this coil. As the current flows, magnetic field will be produced. Now the direction of magnetic field. You can see around this arm of the circular coil, the direction of current is upwards. यहाँ पे देख सकते हो जहाँ से current आ रहा है, so यहाँ से upwards है, and इस जो ये वाली arm है, इसके along जो current की direction, that's downwards. Here it's upwards, here it's down. Means in both arms जो current की direction it's mutually opposite. यहाँ पे upwards, यहाँ पे downwards, or it's mutually opposite to each other. Now we will do one thing. So as soon as current flows through the coil, we know that magnetic field will be produced. So magnetic field is produced. Now to find the magnetic field pattern कैसा होगा, magnetic fields always determined by the magnetic field lines. So magnetic field lines कैसी होंगी, हम एक काम करेंगे, हम इसको टैप करेंगे, जो ये कार्डबोर्ड है, we will gently tap it, हम gently इसको टैप करेंगे, and we will see जो आयरन फाइलिंग से एक स्पेसिफिक पैटर्न में अलाइन हो जाती हैं. You can see over here. अभी तक ये हमने रैंडमली इनको स्प्रिंकल किया था. अब जब हम इसको टैप कर रहे हैं इस कार्डबोर्ड को, you can see ऑन स्क्रीन ये जो आयरन फाइलिंग्स है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में अलाइन हो रही है, खुद को अलाइन कर रही है एक स्पेसिफिक पैटर्न में, सर्कुलर रिंग्स बना रही है around the arms of this coil. इस coil के जो arms है, इसके around ये जो iron filings है, ये circular rings बनाती हैं. इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि there is magnetic field. इससे magnetic field का जो presence है वो हमें पता चलता है कि magnetic field is produced around the coil. ये जो magnetic field अभी होता कैसे, magnetic field lines जो actually होती कैसे है, we can see over here.
एंड दीज आर द कंसन, हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दीज आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स अक्रॉस जो ये कॉइल है सर्कुलर कॉइल, इसकी जो आर्म्स हैं अराउंड दीज आर्म टू आर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रही है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी होंगी, उसके लिए वी कैन फाइंड दैट, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन इट्स अपवर्ड्स, सो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड राइट हैंड थंब रूल यही बोलता है कि अगर थंब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम थंब को पॉइंट करेंगे, देन द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो यहाँ से थंब अप करंट अपवर्ड्स फ्लो कर रहा है, सो थंब विल पॉइंट in upward direction. जो magnetic field lines जो होंगी those will be in anti-clockwise direction. You can see or it's anti-clockwise direction इस आर्म में। अब यहाँ देख लो आप, यहाँ पे इस आर्म में जो करंट की डायरेक्शन है इट्स डाउनवर्ड्स, करंट डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है। जब करंट डाउनवर्ड्स फ्लो करेगा द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, ये जो मूव कर रही है फिंगर्स का कर्वेचर हम देखेंगे इट्स क्लॉकवाइज, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस आर्म इट्स क्लॉकवाइज। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अराउंड द आर्म्स टू आर्म्स, जो इस कॉइल की आर्म्स है, जो जहां से व्हेन द करंट उस आर्म में जहां पे करंट अपवर्ड्स फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और जिस आर्म से जो डायरेक्शन है करंट की वो डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लॉकवाइज है। यू कैन सी दीज आर द क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से क्लॉकवाइज यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है। दिस द एरो इज मूविंग एंड यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर हम सेंटर की बात करेंगे, सो जहाँ हम बीच में जाएंगे, जो एरिया जिस एरिया को ये जो एरिया बिटवीन द कॉइल सर्कुलर कॉइल है, यू कैन सी ओवर हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ से ये वाली भी ऐसी आ रही है, ये वाली भी ऐसी, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम, मींस द एरिया इनक्लोजिंग द कॉइल, जो एरिया इनक्लोज कॉइल को कर रहा है उस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी जो डायरेक्शन है दैट इज सेम, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यू कैन सी अराउंड द आर्म जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं अराउंड। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो शेड हो रहा है पोर्शन, सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। बट अगर हम सेंटर की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द सेंटर, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि अगर हम सेंटर की रेडियस सेंटर की तरफ जाएंगे मूव करेंगे, यू कैन सी जो फील्ड लाइंस हैं दीज आर ऑलमोस्ट पैरेलल। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं दीज आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मींस लिम्ब्स पे, दो आर्म्स पे कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल, सेंटर की तरफ हम मूव करेंगे, सो वी कैन सी जो फील्ड लाइंस दीज बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, ऑलमोस्ट पैरेलल बन रही है, एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही है। अब काम हम करेंगे और देख लो यहाँ पे, और एक बात देख लो, यहाँ पे देखो डेंसिटी ज्यादा है फील्ड लाइंस की, यहाँ पे भी डेंसिटी ज्यादा है फील्ड लाइंस की। अब हम जितना दूर जा रहे हैं रेडियस से, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, मींस जो कॉइल है या सेंटर की बात करेंगे, इससे दूर जा रहे हैं, हियर इट्स आर्म, हियर इज आर्म, इस आर्म से हम दूर जा रहे हैं, इस आर्म से हम दूर जा रहे हैं। जितना हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हैं। देखो यहाँ पे दूर है, सो दूर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है दैट डिक्रीज, वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ से देख लो, अब यहाँ देख लो। अब सेंटर की बात हम करेंगे, जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इस सर्कुलर लूप की दैट्स मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस लूप, जो ये लूप है सर्कुलर लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट्स परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होता है एंड इट्स मैक्सिमम एट द सेंटर, और सेंटर में ये मैक्सिमम होता है। नाउ हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस से अब करंट की बात हम करेंगे। अब सपोज हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम 2 एम्पियर, इनिशियली इट वाज 2 एम्पियर, अब हम काम करेंगे इसको बढ़ाएंगे टू 6 एम्पियर, करंट जो है वो 6 एम्पियर हम कर देंगे। विल अगेन टैप दिस कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को हम टैप करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं ये ज्यादा, दीज आर अलाइनेड मोर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है विद द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वो बढ़ जाता है। यू कैन सी जो डेंसिटी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो भी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। अब हम काम करेंगे,
विल इंक्रीज द रेडियस, रेडियस कॉइल का इंक्रीज करेंगे। जब हम रेडियस कॉइल का इंक्रीज करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे से दूर जा रही है, दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, एंड जब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम होती है, लेस डेंस होती है, इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम है। सो विद इंक्रीज इन करंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एंड विद इंक्रीज इन द रेडियस जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। नाउ दिस कॉइल इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल भी होगा, जिसका साउथ पोल भी होगा। बट कैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिटरमाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इस कॉइल में? फॉर दैट वी हैव ए क्लॉक रूल। क्लॉक रूल से हम ये ऐसा कर सकते हैं। क्लॉक रूल से सिंपली कैसे करेंगे? सी वी विल सी द फेस। जिस फेस में, अगर हम फेस में एक फेस से तो क्लॉकवाइज करंट चलेगा, दूसरे फेस से एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। जिस फेस के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी, दैट फेस विल एक्ट एज द नॉर्थ पोल। देख लो आप, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है करंट, सो दिस फेस विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल एक्ट करेगा। एंड जिस फेस से करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट्स क्लॉकवाइज, से यहाँ पे देखो, यहाँ से इस फेस में जो करंट की डायरेक्शन दैट्स क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज जिस फेस से करंट की डायरेक्शन होगी दैट फेस बिहेव्स एज द साउथ पोल। अब यहाँ से देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से साउथ पोल से आके नॉर्थ पोल, साउथ पोल से घुस के नॉर्थ पोल से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है। और हमने बार मैग्नेट में भी देखा था, यही प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। सो दिस फेस बिहेव्स एज द नॉर्थ साउथ पोल। Now this is the summary of magnetic field lines. Magnetic field lines produced as a circular coil forms the concentric circles. हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है concentric circles बनाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो in both arms those are mutually mutually in opposite direction होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हम उनकी डायरेक्शन जो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं by right hand thumb rule around both the arms, and second rule is there, that's Maxwell's corkscrew rule। जो अगर करंट जिस फील्ड करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है, जो फील्ड लाइंस वहां से जनरेट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, एंड वाइस वर्सा, मीन जिस आर्म से जो करंट की डायरेक्शन अब डाउनवर्ड्स होगी, दैट उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। जो हमने देखा, अगर हम करंट बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं कॉइल का, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता है। जो कॉइल है इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, और इसकी पोलैरिटी हम डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बाय क्लॉक रूल। जो जिस फेस के थ्रू करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है दैट फेस बिहेव्स एज साउथ पोल, एंड जिस फेस के थ्रू करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है दैट फेस बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। और जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, मींस देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।